So, sir, like when you are experiencing something like this at a young age, and you have been put into a very controlled environment, which is the INA, where you did your education, and you have experienced all sort of intense moments at a young age. It was uncontrolled environment, police, gangsters, illegal activities, और फिर एकदम से आप INA में आ गए, यहाँ पे one of the best defense coaching academies of the country. Everything is very strict, very rigorous. But at the same time, it's very controlled. How did that shape you? So yeah, it was difficult. You know, I won't shy away from saying that because आप एक uncontrolled environment में है, and then after my graduation, that is after I went to INA after my engineering. So engineering में भी आप hostel में रह के you are like living that life, and finally when you are in the 4th year of engineering, आप तो बाप होते हो engineering college में because you are the senior most. I was also I was earlier general secretary and so many things. So ये सब करके hostel में भी फाइनल ईयर वगैरह में आप 10 साढ़े 10 के पहले उठते नहीं हो कॉलेज जाने, एंड देन यू कम इनटू अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट टोटली वेयर योर वेकअप टाइम इज 4:30 मॉर्निंग 4:30 in the morning. 4:30 पहला जो ये होता है, एंड वो भी प्यार से कोई नहीं उठाएगा. पहला बेल है बजेगा, नहीं उठा दैट इज यू हैव टेकन अ चांस ऑफ नॉट गेटिंग अप. एंड देन फर्स्ट ट्रस्ट मी, फर्स्ट 1 odd month was horrible मतलब उसके पहले आप हॉस्टल में भी कैसे आप रहे हो, तो योर क्लोथ्स व्हेन योर रूममेट्स है, आपका क्लोथ यहाँ पड़ा है वहाँ पड़ा है, सडनली कोई रूममेट. आई हैव वन डियर फ्रेंड जो हु वाज वेरी बहुत स्पीक एंड स्पैन रहता था, तो वो बेचारा प्रेस बिस करके कपड़े रख के वो सोता था. वेरी ग्रेट गाय. वो उठने के पहले दूसरे लोग कपड़े पहन के निकल जाते थे. तो वी हैड लिव्ड, एंड देन यहाँ ऐसा कंट्रोल्ड, इसमें पनिशमेंट्स. So I remember for first sem, like when we were there, it was a dormitory. 13 of our course-mates used to be, sleeping in that dormitory, and we had one set of washrooms that side, and यहाँ पे एक senior रहता था, and ऐसे that was the arrangement. अब so the norm was कि आपको नहा धो के all of you 13, 14, 15 minutes मिलते थे. So 15 minutes में you have to come down. So पहला ऐसा था कि 15 मिनट आपके लिए है करके. Okay. And then you used to happily come, and then you used to get punishment. Then you realize कि 15 मिनट for all 13 of you. No. Now how is that practically possible? So then you all एक स्टेज के बाद you all bath together, सब नंगा खड़े, and उसके पहले किसने आपको लाइफ में नंगा नहीं देखा होगा other than your parent. And hopefully if you had a girlfriend then, है ना. तो ये लोग आपको ऐसे देख रहे हैं एकदम. पहला तो बर्थ सूट में, पहला तो शाई होगा एक दिन, बाद में तो एवरीवन इज वॉकिंग अराउंड लाइक दैट ओनली. कोई किसी को साबुन लगाएगा. दैट इज व्हाई दैट हैपेंस इज बिकॉज फौज में दे बिल्ड अ कोस्टमेट कल्चर. ओके. इस कोस्टमेट्स में कैसे, फौज में व्हेन यू गो फॉर अ वॉर और एनीवेयर, योर कोस्टमेट्स, योर जो बैचमेट्स, योर शिपमेट, दे बिकम एवरीथिंग फॉर यू. तो उसके लिए बोलते हैं ना, यू विल किल फॉर देम, you will die for them. So that is what is the principle where that coastmate culture is built, the buddy culture or whatever. Okay. And even today, like we just celebrated 25 years of our commissioning अभी जनवरी में. आज भी जब हम मिले थे, people had come from all over the world. Lot of them are settled abroad. Few of them are senior officers in Navy. Few of us who left. All of us are at good position. जब हम आके मिले 25 साल बाद, 2 दिन रहे कोलाबा में, US क्लब में, we were staying there. अभी भी वैसी 25 साल पहले का ना, पीपल आर जस्ट अब्यूजिंग ईच अदर, किसी को ये कर रहा है, किसी का कुछ छुपा रहा है. अरे इट वाज फन. सो दैट इज व्हाट दे बिल्ट इन देयर, राइट. कि पहला 1 महीने में आपका जो भी शाइनेस है ये है. एंड फौज का कल्चर इज लाइक, आपको पनिशमेंट मिलता है तो इट इज लाइक one will not get punishment, पूरा कोर्स will get punishment. That is what they built in. कोर्समेट का जो कल्चर होता है ना, कि your coursemates are everything for you. Even if एक बंदा कुछ fuck up किया, so it is not that that guy will get punishment. It is your entire course will get punishment. Okay. And many a time we will not realize चल क्या रहा है करके. Why are we being in punishment? आप punishment dress में हो, कोई भाग रहा है, कोई रोल कर रहा है, and then suddenly शाम को आके पता चलेगा कि because this bugger did something somewhere else in the academy, and that is why the entire course is punished. So that sense of unity is like drilled in you. और पर तभी सर, when you're going through all of these things in your first year, second year,
that time are you realizing these things कि आपको लग रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है? नहीं, पहला एक दो महीना ना यू विल फील कि नहीं हो रहा है यू नो क्रूड हिंदी में बोल क्या चुतियापा चल रहा है लाइफ में ना, यू विल फील दैट कि यार क्या हो रहा है. ब्रेकफास्ट को आपको जो भी 8-10 मिनट आपको ब्रेकफास्ट मिलता है, यू हैव अ स्पेसिफाइड टाइम, और आपको उतना ही टाइम वहाँ मिलेगा ब्रेकफास्ट के लिए. एंड यू नो इमेजिन फॉर पीपल लाइक मी हु हैड कम फ्रॉम अचौल एंड ऑल, तो हमने कभी लाइफ में कटलरीज नहीं देखे थे, एंड यू आर ईटिंग इन अ डाइनिंग मेस विद सो मेनी कटलरीज. ऑमलेट के लिए अलग कटलरी, एंड कटलरी चेंज हुआ, फोक नाइफ डिफरेंट हुआ तो भी पनिशमेंट. एंड देन यू नो द वे जो आप पहले पॉरिज वगैरह खाते, पॉरिज वगैरह जिंदगी में देखा नहीं था. वहाँ जाके यू स्टार्ट विद अ पॉरिज का अलग स्पून होता है. देयर आर ब्लडी सो मेनी टाइप्स ऑफ स्पून्स एंड कटलरी. एक भी आपने गलत ले लिया तो योर दैट डे का मील इज डन. सो बेस्ट ऑफ द फूड्स, यू नो, बोलते हैं ना ताज स्टैंडर्ड वाला खाना होता है, प्रोटीन रिच, न्यूट्रिशियस, इट इज प्लान्ड दैट वे. एंड देन 7-8-10 मिनट होता है ब्रेकफास्ट करते हैं. एंड देन इमेजिन कि आप कटलरी गलत चूज किए, और स्टीवर्ड्स भी जो होते हैं वहाँ पे, दे आर नेवल स्टीवर्ड्स, दे आर यूनिफॉर्म स्टीवर्ड्स, कैडर्स होते हैं, उनके फूड कैडर होता है, वो भी स्मार्ट हो जाते हैं, वो भी देखते रहे, उनको भी मजा आता है ना कि, एंड दे विल ऑल्सो सी कि कौन कहाँ गलती कर रहा है. एंड यू सिट विथ योर सीनियर्स, लाइक अगर आप जूनियर मोस्ट हो तो एक टर्म सीनियर विल बी ऑन योर लेफ्ट, वन ऑन द राइट, एक सामने होगा, एंड एवरीबडी टॉर्चरिंग एवरीबडी. दैट इज द वे दे, कुछ भी गलती करे बोले क्लोज योर प्लेट. सो क्लोज योर प्लेट मतलब दिस इज ओपन, एंड व्हेन यू क्लोज बोला, जैसे क्लोज बोला दोनों कटलरी ऐसे रखना है. एंड बेस्ट ऑफ द फूड, ऑमलेट, बेस्ट ऑफ द फ्रेंच टोस्ट इज लाइंग ऑन योर प्लेट. क्लोज होते ही स्टीवर्ड पीछे से लेके जाएगा. वो भी इतना बेरहम होता है ना, 1 मिनट नहीं रुके, टक यू आर वॉचिंग योर प्लेट, ऐसे जा रहा हो, जली स्ट्रॉबेरी उस पे ऐसे पड़ा हुआ है. एंड बट व्हाट दे टीच इज व्हेन यू गो फॉर अ वॉर और व्हेन यू डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दैट, एंड एवरीथिंग इज टाइम मैनेजमेंट. जो अभी corporate term what we call time management, na? So what we learned, one of the biggest learning from Forge was ki there is nothing called time management. It is how you manage yourself in that available time. Time management is just a plain jargon. आप कैसे मैनेज करते हो उतने मिनट, दैट इज वाई एवरीथिंग इज डिफाइंड बाय टाइम. राइट. एंड आज तो ऐसा है कि आई कैन हैव माई ब्रेकफास्ट इन 5 मिनट्स. तभी 8-7 पहले एक जमाने में आधा घंटा लगता था. इट मेक्स यू अडेप्टेबल ना सर, क्योंकि एज यू राइटली सेड, क्योंकि अगर टाइम आपके पास आधा घंटा है पर सडनली कुछ तो वॉर सिचुएशन हो गया, एंड दैट हाफ एन आवर गोज टू 1 मिनट और 30 सेकेंड्स, आपको वो सेम टास्क को 30 सेकेंड में कंप्लीट करना ही है. यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ. And they teach other than that also punishment, camaraderie. So academy में you have different squadrons, you know. So I was from a frigate squadron as a destroyer. अभी तो और भी बहुत ज़्यादा हो गया. So वो कल्चर दे बोलते हैं ना कि जैसे if we follow football तो हम क्लब कल्चर होता है, IPL होता है तो टीम कल्चर. So you give everything for your पलटन. Right. So when we say that नाम नमक निशान बोल के जो फौज में बोलते हैं, so that means for your unit you will do everything. Unit के नाम के लिए, नमक के लिए, और निशान is your flag. So we get drilled with that. Squadron के लिए सब कुछ. Squadron thing is very very high in academy, you know. कि अगर हमने I was from the frigate तो मैं yellow, our color was yellow. तो yellow के लिए सब everything was yellow. येलो झंडे के लिए पीपल विल डाई ऑल्सो, ऐसे वाला ना. और एंड अदर्स वेयर रेड. और फिर वो रेड वालों को कहीं देख लिया तो दुश्मन. तो रेड के सीनियर हमको ले लेगा कहीं कुछ ना कुछ बहाना लेके, तो हमारा सीनियर उसको लेगा. when we are there we पूरा so healthy competition. Healthy competition. And then of course towards the last when you pass out, you know, you all of you meet each other and you regale those days. Even today, like अभी हम जब मिले अभी भी हम थे squadron wise, साले तू उसका था, तू ये था, वो था. So and very beautiful Forge, it carves out a personality from you, you know. आपने जो नहीं सीखा है, sports, all sports you will play. Because you know hockey and all हम कहाँ खेले slums में ना. For us it was गली cricket. उससे ज़्यादा हम लाइफ में कभी बड़े नहीं. कबड्डी खो खो होता था स्कूल में. सो आई लर्न मोस्ट ऑफ द गेम इन फॉर स्क्वाश हुआ, टेनिस हुआ, बैडमिंटन से एनीथिंग, स्विमिंग फॉर दैट मैटर, ऑल गेम्स पूरा.
they teach you, you know, how to behave, etiquette, Yeah. ball dance, mess dance, how to behave with ladies, and Yeah. beautiful thing, beautiful. They step by step आपको वो इंसान बनाते हैं, बोलते हैं ना. Yeah. Yeah. And that's how you become polished. Your language, your diction. मैं तो I was never knowing English, Yeah. frankly. जब मैं छोटा स्कूल से था तो इंग्लिश वॉज यू नो, बिकॉज कोई भी हम इंग्लिश बोलते तो टिपिकल छोटू स्कूल में होता है ना, Yeah. अरे अंग्रेज आ गया करके. सो इंग्लिश वॉज सो फकिंग डिफिकल्ट. Yeah. आई एम सो सॉरी, कर्स वर्ड्स होगा, दैट्स माय फौजी सर, आई कांट हेल्प इट. सो ये सब वहीं से सीखे. Yeah. तो कोई Was सी there a lot of technical knowledge also that you guys had to yeah. So had what to learn? happens is आपका first is orientation to the forge culture, know about navy के culture ये. Then navy is technical, navy is fully technical, and I'm an engineer, so they groom you into your technical profession. Like I was from the electrical and controls cadre. So फिर उसके बाद जो academy के training के बाद we do a specialization, PG specialization in one of our units, where you get to know about the missiles, the weapons, the ships के जो भी है. Ship is a city ना. जब हम यहाँ बैठे तो ship का एक power generation हो. Ship is a self generated self city. Yeah. उसको अपना power generate करना होता है. And उसके साथ साथ there are 100 people staying there. उसके lookout. Then ship is a warship. It's not a merchant ship. Not a, you know, वैसे. Warship है तो there are weapons, there are equipment, there are guns, there are missiles, there are pyros, there are so many ammunitions you carry. तो उसकी देख रेख, तो रडार से लेके you have stealth mode, तो अपने को बचाना, दूसरों को मारना, मतलब you know all those things. Which is the biggest ship you have been on, sir? So I was there on Virat for some time. INS Virat. INS Virat. So क्या हुआ था कि you know, it was a stopgap arrangement wherein I was supposed to go on some other ship. That ship was not available, so I was on Virat for that much of time. Okay.